Namaste ji, namaste. Hope you're doing well. If you're preparing for the NLSAT 2023, this discussion is going to be very, very fruitful for you. Try to watch it till the end. Ignore the echo in my voice since this is a new room. I'm yet to get it prepared for audio. Now, we are going to be discussing the how, what, when should we start preparation, everything that is related to the NLSAT by analyzing these mark sheets. So, to have this discussion with you guys, to know precisely this exam, how this exam works, what it requires, how and what will you be facing when you will be taking this exam, I actually went ahead and took this exam in this 2022 edition. And I wrote it as if I were taking a real examination. I wanted to get through to part B, not the interview. So I wrote very below average quality answers for part B, and so that I really wouldn't spoil anyone's interview because इसके अंदर दो list वस्ट नहीं आनी है, दो या तीन list नहीं आती होती. So it's like a one-shot examination. So I have my scorecard. I have a student of mine's scorecard. That's Meher's. She scored rank 6. Then Ayushi Jain करके she scored rank 1. And we are, so since we have this data, we can pretty much estimate what exactly the final scorecard everyone's look like, because they don't publish, the NLUs mostly don't publish a cumulative list with names, etc., etc. So everyone got their own individual scorecard. So we have 3, and we, to precisely understand what is happening with this exam, I wrote it. So in part A, I had 52.5 and I got an all India rank of 60. Alright, so at 52.5 we are at 60. Meher scored 2.5 marks more than me. She was at 55 and her rank was 25. So in a span of 2.5 marks, there were 35 folks, roughly speaking. And Ayushi, she got 56.25 and her rank, all India rank was 14. So the topper must have been somewhere around the, you can say 58, 59-ish range, or even 60. And since around 300 had to go from part A to part B, so roughly you can estimate somewhere, I think this part A cutoff list should have been around somewhere around the 47, 48 odd marks. I had one more data set, but I'm not including it. Despite her all India rank being 24 in certain aspects, she didn't get the call. Now part B mein, they scored me 20 marks. Out of a potential 65, this is out of 75. And I had an all India rank of 158. I think if I had written answers in the manner in which I wanted to, I would have managed around a 58 ki rank, but then I really didn't want the interview, so I skipped it. Meher scored a rank 9, she scored 38.5. So she had 18.5 marks more than me. And in that space, in that 18.5 marks, we had almost the entire subset of whoever made it to part B. So in fact, for part B guys to have called in for an interview, you needed the top 150 folks out of the 300. I was at 158, so not really far from getting an interview call even with such low marks. So 38.5, and Ayushi, well, and her answers were really appreciated, I think, by the examiners. So they scored her a 50.5 out of a 65. That's pretty much getting all of the possible marks that a student could have gotten. Therefore, she scored rank 1, and then the interview became a mere formality for her. So she, in the final interview, she scored a 58.33. And in part B plus, as in final interview plus part B. So interview is for 10 marks. So यहाँ पे मेरा not applicable दिखा रहा है. Meher's is at 48 and her all India rank became 6. Then we have all India rank became 1. And इसके बाद मेरे पास एक और data set है. In fact, 2 और data sets हैं, 2 और scorecards हैं. 3 of our students made it, and this is 2 of them, and 1 almost made it, but उनका scorecard भी है. Maybe perhaps I make another discussion video later on in the year. I'll discuss that score set as well. Alright, now what does all of this say? If you look here, even if you're scoring at the 50% mark in part B, which is basically part A is the screening portion, part B is the actual examination,
you pretty much will end up getting an interview call. It's as simple as that. So if you're scoring a 32.5, let's say out of 65, you will get an interview call. Now, based on my experiences, I'll just share you this is going to be a slightly lengthy, slightly detailed discussion. From this data set, we can pretty much speculate what happened or what the final cutoffs, final rank lists, etc. look like. Firstly, if you're preparing for this exam, the number of seats is way too low, and number of seats itni low hai aur usme reservations hai. So if you are from an unreserved category student, you pretty much, if you take my advice, that is, ye adesh nahi updesh hai. Updesh is, if you wish to follow it, you can. If you don't wish to follow it, well, that's your choice. You cannot solely be reliant on to clearing this exam कि हाँ भैया यही करेंगे, इसके अलावा कोई और law entrance नहीं देनी. So you have to have backups, that is other law entrances, BHU, PU, DU, whatever law entrances that are there. We won't get into how many 3-year law entrances are there. So firstly, you cannot be solely reliant on this exam thanks to the seat structure. It's as simple as that. Statistically, you may just not end up making it. So therefore, you need to have a backup, because you cannot be ruining years of your life on exams which have a very low seat count. Alright, now we go ahead. Now when we're looking at part A, that is primarily passages, and this is the qualifying exam. This is the screening portion of the exam. So this is, you can say, a prelims sort of an exam. So you have 75 questions, you have passages A to H, I think A, B, C, D, E, F, G, H. 8 passages you got. You got 75 questions, so roughly around 9 to 10 questions per passage. And in this exam, you pretty much, any aspirant or any student will perhaps attempt each and every question, because they give you a negative even for the unattempted questions. So might as well attempt it. भाई negative तो मिलना ही, और अगर positive आ गया, मान लेते तुक्का भी fit हो गया, competitive exam में हमेशा होते हैं, तुक्का भी fit हो गया, तो at least चार negatives मेरे negate हो गए. So that's a 1 + 1 - 0.25 negative marking scheme. That is standard. Now, here was my experience. So when this examination started at 2 o'clock, I almost was through part A. I had shared this in the vlog as well. Many folks were struggling to complete part A क्योंकि part B की शक्ल देख ली. In fact, many students जो हमारे यहाँ से निकले, मतलब as in कोई और भी निकले जिन्होंने केवल YouTube पे वीडियो वगैरह देखे थे, and then they said thank you वगैरह, जिससे भी मेरी बातचीत हुई, all of them were like, भैया हमारा तो जी part B, बस हमने तो पूरा कर लिया, ये याद नहीं आ रहा कि क्या लिखा था और हो गया, बस बहुत अच्छी बात है. कई लोगों ने ऐसा कहा, कुछ लोगों ने राधा. तो पार्ट ए वॉज अ स्ट्रगल इन इट सेल्फ टू कम्प्लीट, क्योंकि 2 से 4:30 बजे का पेपर था, एंड 3:15 तो आपको पार्ट ए बंद करना ही करना है, बिकॉज पार्ट ए के जितने नंबर आ रहे हैं वो इवेंचुअली फाइनल स्कोर में तो कोई मैटर भी नहीं कर रहे. सो एज लॉन्ग एज यू क्लियरिंग द कट ऑफ, अब इंटरनल कट ऑफ इनका क्या मतलब, वो तो हम फाइनल सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, बट इट शुड हैव बीन अराउंड दी, यू कैन से दी 43-45 मार्क रेंज पे पहले टॉप 300 पार्ट ए से पार्ट बी गए होंगे. अंदाज़ा है, स्पेकुलेशन है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कोट आउट कर सकते. तो जब मैंने ये देखा, तो मुझे लगा कि 3:10 पे आई वॉज ऑलमोस्ट थ्रू द 75 क्वेश्चन मार्क इन माई एग्जाम सेंटर एट NLU Delhi this year. Now I observed that many students were struggling to complete part A, क्योंकि मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, I had time, तो इधर उधर नज़र दौड़ाई. So everyone was at somewhere around the 60 question odd range, and there were 15 more to go, 75 में से 60. और काफ़ी जगह ये हो रहा होगा कि यार पार्ट ए तो मतलब हो रहा था पार्ट ए, बट द पैसेजेस वर लेंदी, बट टफ नहीं था, मोस्टली टफ नहीं था. ठीक है, अब उसके अंदर 4 ऑप्शंस में से 2 तो बिल्कुल ही बेकार थे और 2 में ही कंफ्यूजन थी, वहीं पे सारे नेगेटिव सबके आए होंगे. आई हैव सीन द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स who are going to be topping the DULLB this year couldn't get through this because of anxiety issues, perhaps because of blunders, because of commonsensical blunders, etc. अच्छा हुआ ये एग्जाम पहले हो गया, तो हमारी मतलब our exam anxiety is now over. तो ये वाला जो काम था, तो मुझे लगा कि यार सबसे पहले अटेंशन स्पैन पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट टू टेक इन. तो 2 बजे से अगर काम शुरू हो रहा है, 3 बजे तक 8 पैसेज, उसके अंदर से इतने क्वेश्चन, उसके अंदर दिमाग लगाना है, तो अटेंशन स्पैन थोड़ी बढ़ाने की जरूरत, थोड़ी रीडिंग हैबिट बढ़ाने की जरूरत है, जो आजकल हमारी दुनिया की, हमारी जनता की आजन खत्म हो चुकी है. उसका कारण क्या है? इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स. कृपया करके इसको बंद कर दीजिए.
अगर आपने ऐसे एग्जाम्स में, इफ यू हैव एनी होप of clearing these exams, you have to have been a habit of reading and writing. Having said that, now let's extract out the type of questions that were there in part A. So there were कि phrase, इस phrase का इस passage में मतलब बताओ. Please explain why the author is saying something or has said something. The most accurate summary है कि ये शब्द अगर आप part A का question paper Telegram channel वगैरह पे पढ़ा, everything is linked out in the description. मोस्ट एक्यूरेट समरी, ये मोस्ट एक्यूरेट जो दो शब्द है ना, मोस्ट एक्यूरेट, दैट मीन्स दो तो ऑप्शन बिल्कुल बेकार है और दो ऑप्शन में से आपको बेटर वाला चुनना है. तो ये आपको क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा कि मोस्ट एक्यूरेट बार बार पूछ रहा है. ओके, देन एक से दो करंट अफेयर्स भी थे जो कि स्टैंड अलोन आपको वैसे भी, इफ यू वर प्रिपेयरिंग यू वुड हैव मतलब आइडियली स्पीकिंग नोन ना. अगर मैं पार्ट ए में से टोटल भी करंट अफेयर्स निकाल दूँ तो आई थिंक 8-10 होंगे या 10-12 हो सकते हैं. बट अगर हम स्टैंड अलोन उसमें से भी देखें तो 5-6 आपको स्टैंड अलोन विदाउट द पैसेज, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट व्हाटसोएवर, दोस क्वेश्चंस स्टैंड अलोन करंट अफेयर्स वो प्रीटी इजी. ठीक है, 4-5 जो थे शायद ना पता हो, बट बाकी जो पता है वो तो मार्क करने ही है. तो वो आपको ऑलरेडी, एंड सम यू कुड सॉल्व बाय पीओई एज वेल, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. तो 1-2 से करंट अफेयर्स पर पैसेज में थे. मेन आइडिया ऑफ पैसेज पूछा गया था जिसमें वही 2/2 वाले ऑप्शन. Then strengthen the argument, weaken the argument. There was simple legal reasoning. पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही वो आपको एक सेक्शन सा बना देंगे और उसके नीचे एक सिचुएशन बता देंगे और पूछ लेंगे जी डिसाइड. Simplest form of legal reasoning so that they are just checking you whether you can stick to the section that has been provided to you. अब उसकी तैयारी वैयारी कैसे करें, दिस इज, उसके लिए आपको लॉ पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं. सॉल्व कॉमन सेंस बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं विद अ लीगल फ्लेवर अटैच्ड टू इट, जस्ट लाइक द क्लैट, जस्ट लाइक द AILET does on the UG level. Then they were spot the grammatical errors. एक फ्रेज निकाल के दे देगा पूरे पैसेज में से, आपसे पूछ लेगा सिंगुलर प्लूरल के कनेक्शन, प्रेपोजिशन ठीक लगा हुआ है, वो वाले क्वेश्चन थे. And the author is least likely to agree with all of these are critical reasoning topics. Then logically follows कीजिए. अब ऑथर ने तो आपको पूरी कहानी बता दी, अब इसका लॉजिकल कंक्लूजन बता दीजिए. और आपका जो ऑथर का जो मेन आर्ग्यूमेंट, ऑन व्हाट बेसिस इज ही क्रिएटिंग द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज, उसका बेसिकली काम बता दिया. देन सिनोनिम पूछे गए थे, कुछ सिनोनिम पूछे गए थे तो आपने एंटोनिम भी प्रिपेयर करनी है. अब ऐसे कोई वर्ड लिस्ट स्पेसिफिक नहीं है, बट जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं वो तो आपने काम करने हैं. कंक्लूजन पूछा था, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछा था. दिस वाज प्रीटी मच पार्ट ए. तो एक तो लीगल रीजनिंग का सवाल हर पैसेज में था, करंट अफेयर्स 1 से 2 थे, और ये सारे के सारे बाकी जो भी 10-1 क्वेश्चन जो उन्होंने लेआउट करे हुए थे. और क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगता है पैसेज समझने में और फिर उसको एसोसिएट करने में, लॉजिकली एसोसिएट करने में जो थोड़ा बहुत जो समझ जाता है. अब अगर मेरे को पार्ट ए की तैयारी करनी हो एज अ स्टूडेंट, सो पार्ट ए के अंदर प्राइमरली 3 कंपोनेंट जा रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, सीए प्लस इंग्लिश. प्राइमरली सीए के साथ आप स्टैटिक जीके भी ऑफ कोर्स जोड़ सकते हैं. कोई भी पैसेज दे दिया, लेट अस से ऑन सम स्टेट्स, और नीचे पूछ लिया व्हिच इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन और व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो यू नो दिस इज अ बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन दैट फ्लोज फ्रॉम द पैसेज. सो सीए एंड स्टैटिक जीके मैं साथ में रखता हूँ. क्रिटिकल रीजनिंग है ये ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर क्यों कह रहा है, ऑथर कैसे कह रहा है, और ऑथर मतलब ऑथर की सारी जन्म कुंडली पूछ लेगा आपसे. तो दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग. तो ये 3 टॉपिक, 3 मेन मुद्दे की बातें हैं आपको प्रिपेयर करनी है. और साथ में अंग्रेजी प्रिपेयर करनी है. अंग्रेजी आई थिंक स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी आप बचपन से ही अब तो करते आ रहे हैं, अब तो आपकी ग्रेजुएशन भी हो गई. क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करनी है इस पेपर के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की जरूरत है, क्या आपको लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ने की जरूरत है ना. टॉट करने नहीं करनी, आईपीसी पढ़नी नहीं पढ़नी, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने नहीं पढ़ने, आईपीआर पढ़नी नहीं पढ़नी, लीगल पढ़नी नहीं पढ़नी. वाह जी वाह. तो ये तो सब गया. क्या आपने एग्जैक्टली आपको वो डायरेक्शन टेस्ट करने, ब्लड रिलेशन करने, सीक्वेंस सीरीज करनी, कुछ नहीं पूछ रहे, कुछ भी नहीं पूछ रहे. अभी पार्ट बी पे आता हूँ जो एक्चुअल एग्जाम है. ये तो क्वालिफाइंग वाला तमाशा था. तो उसके अंदर स्टैटिक करनी है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सुपरलेटिव्स, इंडिया, वर्ल्ड, यूएन वगैरह की जो नॉलेज है. क्योंकि पैसेज अगर कोई भी रिलेटेड आ गया उसमें से कुछ भी पूछ लेगा. मान लेते हैं कि रेफ्यूजी पे पैसेज आ गया, फिर रेफ्यूजी पे कन्वेंशन पूछ लेगा नीचे. So stuff such as that, so that can be done on a standalone basis with respect to static GK and current affairs तो पूरे साल की चलेंगे. क्या आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है? जी हाँ करनी है. क्या आपको लॉजिकल रीजनिंग वो जो स्टैंडर्ड, वो जो RS अग्रवाल वाली, मैथ्स वाली नहीं करनी. अंग्रेजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पार्ट ए के लिए बोल रहा हूँ. अब ये हो गई जी हमारी पार्ट ए की डिस्कशन. तो अब इसके ऊपर कोई NLSAT के ऊपर कोई डेडिकेटेड किताब तो अभी तो नहीं है, ऐसा नहीं है. आई एम अटेम्प्टिंग टू राइट वन. आई डोंट नो व्हेन इट कम आउट. इट्स आई थिंक 20% और 20% के करीब रेडी है. बट व्हेन आई थिंक दैट इट्स रेडी आई विल फाइनली पब्लिश इट.
बट इन टॉपिक्स के ऊपर तो बहुत सारी किताबें आती हैं, चाहे वो क्लैट की आती हो, चाहे वो AILET की आती हो, चाहे वो कैट की आती हो, जो आपकी इच्छा हो वो आपने यहाँ से प्रिपेयर कर लेने। टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और क्या करना है। ऑलराइट, अब जा रहे जी पार्ट बी में, विच इज प्राइमरली स्पीकिंग द एग्जाम। ये तो क्वालिफाइंग थी जी, वो कह रहे जी ये तो इन्होंने तो यूपीएससी मिनी यूपीएससी बना ली, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। फिक्शनल लीगल रीजनिंग पूछी गई थी। क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट, जो कि इन्होंने क्वेश्चन वगैरह कोई पब्लिश नहीं करे, पार्ट बी के पेपर्स आई थिंक अगले साल जब नोटिफाई करेंगे ना जी एग्जाम होने वाला है, तब आई थिंक ये पार्ट बी रिलीज कर देंगे, ये सैम्पल क्वेश्चन देख लो पिछले साल वाले। तो इसमें क्वेश्चन पेपर बुकलेट में ही था, दैट इज व्हाई आई वेंट एंड टुक द एग्जाम एंड दैट इज व्हाई आई रोट द आंसर्स इन द मैनर दैट आई डिड, so that I could pretty much understand what will be the data set, what will be the score ranges, what does a student go through। और ये तभी कर सकते हैं जब आप एग्जाम दें, और अगर एग्जाम के लिए पढ़ाना हो, क्योंकि बिना मतलब अगर आपको पढ़ाने नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट एग्जाम तो पता होना चाहिए ना जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दिस विल रिक्वायर अ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन। And if you are still here with me in this session, great, you're pretty much serious about your preparation। अभी तक तो आधी जनता भाग चुकी होगी। तो क्वेश्चन पेपर बुकलेट में क्वेश्चन इधर था, लेफ्ट साइड पे था, और यहाँ पे था जी राइट हैंड साइड पे ही 10 क्वेश्चन थे ऐसे 5 नंबर के, और ऐसे आपको डब्बा बना के दे रखा था कि डब्बे के अंदर अंदर अपना आंसर लिखो। आई थिंक इट वाज 150 वर्ड्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो यहाँ पे जो चीज थी, जो क्वेश्चन था, उसका कोई करेक्ट आंसर है नहीं जी, बी वेरी क्लियर ऑन दिस, उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। दे आर प्रीटी मच चेकिंग you on whether if you can whatever your conclusion is, why are you reaching that conclusion, legal conclusion, why are you reaching that conclusion, and the manner in which you can elucidate those reasons, that pretty much is part B। So for example, let us take example लेते हैं, fictional question ले लेते हैं। Let us say that your neighbor puts a poster that my dog is missing and he says मतलब just missing dog, and then या आपको कहीं से information आती है that his dog is missing, and then you are out on a walk a couple of days later and then you find the dog, but when you come back you see the neighbor has posted a poster जिसके अंदर लिखा है if dog found 50,000 rupees will be given, right? तो आपको लगता है अच्छा कुत्ता आपके ऑलरेडी हाथ में है, आप पहले ही पकड़ के ले आए हैं before you got to know about this offer। Now this is a real life case law as well which you study in your contract act semester, but just creating a hypothetical situation here। तो उसके अंदर तो जजमेंट आई थी कि जी आपको पैसे नहीं मिलेंगे because you didn't know about the offer etc, but here they are not checking you on whether you know this case law or not, they are checking you। आप कुछ भी आंसर लिखिएगा, आपको पैसे मिलते हैं तो उसका रीजन बताइए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका भी रीजन बता दीजिए। तो वैसे एक फिक्शनल सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसके अंदर वो ये कहेगा कि यू आर द जज प्लीज डिसाइड, और यू आर द लीगल, यू आर द आर्बिट्रेटर, कि ऐसा कोई डिस्प्यूट हो गया, नाउ यू डिसाइड इन दिस सिचुएशन। 5 नंबर किस बात के हैं कि वेदर यू कैन एलूसिडेट योर reasons very clearly, very specifically and very precisely। This does not require knowledge of law। For example, इसी एग्जाम में पार्ट बी में 2022 की एडिशन के अंदर, 2022 के एडिशन के अंदर ये था कि जी एक आप पहुंचे फ्लाइट पकड़ने और फ्लाइट तो जी उड़ गई बिकॉज यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, आप 1 घंटा लेट हो गए, लेकिन आपकी मीटिंग बड़ी क्रूशियल थी। तो फ्लाइट वालों ने क्या कहा कि जी ऐसा है कोई बात नहीं जी, हम आपको अगली फ्लाइट पे डाल देंगे और आपसे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लेंगे, या 10% 20% कुछ भी लिखा हुआ था ऐसा कुछ। अच्छा, तो आपने अगली फ्लाइट पकड़ी, लेकिन आपका उसी दिन इंटरव्यू था, तो आप उनके ऊपर भरोसा करके चलो लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं अगली फ्लाइट। अब अगली फ्लाइट का जो पायलट था वो उस ट्रैफिक जैम में फंस गया जिसमें आप फंस कर आए थे, और वो लेट हो गया और वो फ्लाइट और डिले हो गई 2-3 घंटा। अब आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं एयरलाइन से कि आपके चक्कर में मैं इंटरव्यू पे नहीं पहुंच पा रहा, क्या आपको पैसे मिलने चाहिए? अब इस पे कोई करेक्ट आंसर नहीं है, इस पे जो भी आपका आंसर है कि पैसे मिले तो उसके रीजन बता दीजिए, पैसे नहीं मिले तो उसके रीजन बता दीजिए, वो 5 नंबर में से आपको असेस कर देंगे। और ये भी लिखना है आपने। तो मेजॉरिटी वहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब सबको ऑनलाइन की आदत पड़ी हुई है, तो वो हाथ थक चुके थे। पहले तो पार्ट ए से दिमाग थक चुका था, फिर पार्ट बी में आते आते फिर दिमाग जो समझ में आ रहा है लिखते चले जाओ, क्योंकि दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है इतनी देर टेक्स्ट पढ़ने में। इसीलिए टेंशन स्पैन बढ़ानी पड़ेगी इफ यू विश टू स्कोर बेटर इन दीज एग्जामिनेशंस। So they are testing you primarily, can you argue it out, can you argue such a situation out, कृपया करके you have to work on this part B। This is pretty much the main examination, right? And generic CA essays were there, 15 marks। generic CA essay मतलब 3 टॉपिक दे दिए थे, उसमें से कहता है एक पे लिखते भाई 15 नंबर में से तेरी असेसमेंट कर देंगे। मैं तो उसमें आई थिंक मेरे पास 5, मैं इतना ज़्यादा बोर हो गया था वहाँ पे बैठ के कि चलो मैंने कहा कोई बात नहीं कुछ लिख देते हैं। तो मैंने तो इतना वो हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दी और
कम कंटेंट लिख दिया. आई थिंक इट वाज आई चोज दी वन इलेक्शन वन नेशन वाला टॉपिक वहाँ पे था. तो ऐसे टॉपिक जैसे CAA की यूजफुलनेस या UCC के ऊपर या वन इलेक्शन या रेलेवेंस ऑफ UN, तो वी हैड प्रिपेयर्ड आवर बैच हैड प्रिपेयर्ड एंड दैट शोड अप इन द सैंपल पेपर. काश काश आ जाता रियल लाइफ एग्जाम में तो बल्ले बल्ले हो जाती, बट कोई बात नहीं. तो ऐसे अब रैंडम एसेज हैं ये, इसके ऊपर आप पूरी तो इफ़ यू आर अ वेल रेड पर्सन हु रीड्स द न्यूज़पेपर रेगुलरली, आई थिंक यू विल बी एबल टू टैकल देम आउट. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. सो बट आई हैव द सोशल रेलेवेंस, ये नहीं कि इंसान को कितनी पार्टी करनी चाहिए, ऐसा कोई ऐसे नहीं आने वाला. लेकिन है, और ऐसा कोई इंसेनली पॉलिटिकल ऐसे भी नहीं आने वाला विच लीन्स इन फेवर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा. जस्ट इन हिंदुस्तान के ऊपर पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड कुछ भी ऐसे, मतलब एक आपको प्रिपेयर करना ही करना है. कि जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक इसके अंदर था, अच्छा जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, इसके अंदर नहीं था, मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट की रेलेवेंस यूजफुलनेस आज की डेट में उस पे ऐसे स्टफ सच एज दैट. सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट. तो 2 से 4:30 बजे का पेपर था, तो वही मैंने आपको बताया 3:10 सवा 3 के आसपास पार्ट आपको खत्म करना है. फिर आपके पास सवा घंटा है, लेकिन सवा घंटा भी मेरे हिसाब से तो शॉर्ट ही है. मतलब 3:15 से 4:30 मेरे हिसाब से शॉर्ट ही. आप रफली अराउंड 3-3-5 के आसपास आपको पार्ट बी में कूदना ही कूदना है. क्योंकि अगर आप पार्ट ए में टॉप कर गए, पार्ट बी में कुछ ना लिख पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था, पेपर तो फिर गया. क्योंकि पार्ट बी की असेसमेंट है, पार्ट ए तो स्क्रीनिंग पेपर है. नाउ this main problem that I noted when I was also attempting this exam and when I was observing left right center whoever was with me in room number 205 of NLU Delhi, if I'm not mistaken about my room number as well, could see आसपास. तो शॉर्ट सर्किट हो गया कि रीडिंग सो मच टेक्स्ट. यू हैव टू गेट इनटू हैबिट ऑफ रीडिंग सो मच टेक्स्ट. अब आती है बात जी प्रिपरेशन की. मेरे तजुर्बे में, आप मेरा पर्सनल अगर मतलब मेरी जो राय है, जो जिसके चक्कर में मैंने एग्ज़ाम दिया था जाकर, मुझे लगता है इस एग्ज़ाम का एक जो तोड़ है इस एग्ज़ाम के लिए एक्चुअल प्रिपरेशन इज बाय एन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, नॉट इवन एन ऑनलाइन वन. ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जिसमें आप आ रहे हैं, 2.5 घंटा आप बैठ रहे हैं विदाउट अ फोन एंड यू आर राइटिंग एंड रीडिंग एंड यू आर रीडिंग एंड राइटिंग. दैट इज एक्चुअल प्रिपरेशन. We are designing it. Perhaps we open it in January 2023. If you would be interested, I'll put a form ka link. Obviously, it's going to cost. I really don't know. मतलब मैं कितने tests? I'm aiming for 5 to 10 tests because of creating original tests for this, and then sitting and analyzing them. There will be a cost attached to it, of course. But I really don't know how much. What? I'm just putting out a form. आप उसमें अपना email address डाल सकते हैं. जब ये offline test series खुले, तो हम आपको इत्तला कर देंगे जी. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे सेंटर में आके 2.5 घंटे का आप ये दीजिए मॉक टेस्ट, मतलब ये लिखिए, हम एनालिसिस वगैरह करके आपको नंबर देंगे और एक जैसे भी करके आपको आपके एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. क्योंकि ऑनलाइन में तो बड़ा आसान होता है, फटाफट एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करी और बच्चे को बता दिया कि जी ऐसा ऐसा है. बट ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ये दिस इज़ प्रीटी मच माई आइडिया. क्योंकि मुझे अगर इस एग्ज़ाम में आप सच बात पूछेंगे तो दिस एग्ज़ाम इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन योर कॉलेज एंड स्कूलिंग. जो लैंग्वेज स्किल्स आप बना कर आ रहे हैं, जितनी आपकी राइटिंग एबिलिटी है, जितनी आपकी रीडिंग एबिलिटी है, इस साल ही 5-7 तो LSR वालों का ही हो गया. शायद लिखना ज़्यादा आता हो, कह सकते हैं कैन बी अ डिसेंट कंक्लूजन. बट लिखने की एबिलिटी और रीडिंग की एबिलिटी कोई भी ज़्यादातर कोचिंग अकेडमी पॉइंटर्स तो ज़रूर दे सकती है, बट इतना ज़्यादा इन्हांस नहीं कर सकती. बिकॉज दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु रन्स अ कोचिंग अकेडमी फॉर अ लिविंग, वेरी फ्रैंकली. So an offline test series which actually gives you the real flavor of this examination, not an online one. Online one will not perhaps do justice to this. Alright. So an offline one will do the trick. Based on my experience, you are free to disagree, you're free to argue it out, whatever. Then people call us कि जी कोई ऑफलाइन कोचिंग है. मैं आपको सच बात बताऊँ, ऑफलाइन कोचिंग में आज तक ज़्यादा कुछ कराने का है नहीं इस एग्जाम में. मतलब मैं अभी तक परेशान हूँ कि मैं कराऊँ क्या. कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराने, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करानी, टॉट नहीं कराना, IPA DULLB में तो आधे से ज़्यादा मतलब 6 महीने में 3-4 महीने तो इसी में निकल जाते हैं. स्टैटिक जी कितनी भारी भरकम करानी पड़ती है, करंट अफेयर्स हैं, लॉ है पूरा, देन इंग्लिश आती है, देन लॉजिकल रीजनिंग वो स्टैंडर्ड RS से करवाती है. यहाँ तो कुछ भी नहीं है. और यहाँ पे एज सच कोई एज सच ये भी नहीं बता सकते कि ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला तो पक्का आना है करंट अफेयर्स के अलावा. तो वील बी स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बैच, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. अगेन फिर भी मेरी राय मानेंगे, DULLB NLSAT की तैयारी साथ में करेगा. अभी एक पीछे एक मैसेज आया हुआ था, आई थिंक इट वाज मिस पूरी करके स्टूडेंट का नाम व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ रहा था. तो वो कह रही थी कि मैं NLSAT की तैयारी करूँ तो DULLB की साथ में हो जाएगी, नहीं होगी.
नहीं होने वाली, सिंपल बात है। क्यों नहीं होगी भैया, यहाँ लॉ नहीं पढ़ रहे, ये एग्जाम ही कुछ और है, दिस इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, डोंट मिक्स देम टू। बट यस यू कैन कंबाइन, अगर मेरी आप बात माने तो तैयारी दोनों करी, DULLB की भी करनी है, NLSAT की भी करनी है, NLSAT हो गया ग्रेट, DULLB अगर दिल्ली में ही रहना है फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक छात्रा है जिनके साथ कुछ कंडीशन है, वो दिल्ली छोड़ नहीं सकती, उनका हो गया था, उन्होंने छोड़ दी सीट, वो DU जाएंगी, सिंपल बात है। तो मेरे हिसाब से DULLB NLSAT की तैयारी साथ में होनी चाहिए। आपको कोई मदद चाहिए होगी, we'll launching a combined batch for this online only अभी के लिए। Offline I'm really not sure whether we'll be starting a NLSAT का batch. If we do start then obviously I'll announce it on YouTube etc. क्योंकि offline में पहले मुझे मतलब मटेरियल तैयार करना है, and since I'm pretty much busy with judiciary classes all the time, I haven't really had the time to prepare it. So online के अंदर pretty much I think I can manage it. We'll be start to upload the lectures pretty soon, perhaps next week onwards. Can you do this by self preparation? Yes, as I told you can pick up these very topics की जो dedicated जो किताबें आती हैं from Amazon, from anywhere, and then you can start out your preparation. ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। couple it out with current affairs, part A तो निकल जाएगा, that is for sure. पार्ट बी के लिए थोड़ी सी वही प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है जी। कोई अब आपको स्पेसिफिकली बैठ के एज सच हर सिचुएशन का एक मॉडल आंसर तो दे नहीं सकता, बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। सो कैन यू प्रिपेयर इट ऑन योर ओन? यस, यू कैन प्रिपेयर इट ऑन योर ओन। इनफैक्ट ऐसा कोई एग्जाम विश्व तो बना नहीं जो कि दैट यू कांट प्रिपेयर फॉर योर ओन। हमें कॉल आता है कि जी ऑफलाइन कोचिंग कराइए आप 1 साल की। 1 साल के लिए मेरे पास भैया कुछ कराने को है नहीं। कैट की भी जो कोचिंग होती है ना, सी ए टी इज प्रीटी मच अ सिमिलर स्टाइल एग्जाम, बट वहाँ क्वांट होता है, वहाँ पे लॉजिकल होती है, वहाँ पे बहुत कुछ है कराने को। इंग्लिश का अगर मैं सिर्फ पोर्शन देखूँ ना, केवल इंग्लिश का, तो 3-1 महीने में खत्म हो जाता है। इसकी भी 4 महीने में एग्जाम में तैयारी हो जानी चाहिए। 1 साल की जरूरत नहीं, 4 महीने में। सी ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो सारे ट्रैक आउट करने पड़ेंगे, बट 1 साल में ऐसी कोई मतलब 1 साल की जी 1 साल ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हो, सिर्फ टाइम पास है, जिंदगी के महत्वपूर्ण जो समय है दैट इज बीइंग वेस्टेड। मेरे हिसाब से 4 महीने इज अ वेरी गुड शॉर्ट। सो इवन इफ यू स्टार्ट आउट इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, you will have a decent shot to take at this examination. That's again my opinion. Free to argue, freedom of speech 19(1)(a), reasonable restriction 19 clause 2, reasonable First Amendment 1951. I perhaps I like to say it out, keep on saying this so that remains in practice. तो ये थी जी मेरी असेसमेंट NLSAT को लेकर। और आप NLSAT 2023 की जब तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पॉइंटर्स अगर आप दिमाग में रखेंगे, आई बिलीव आपका बहुत अच्छा काम हो जाना चाहिए, एंड यू विल टेक अ फेयर शॉट एट दिस एग्जाम। डू कीप द सीट मैट्रिक्स इन माइंड, डू कीप द amount of reservations in mind, and again do not solely rely on this examination, क्योंकि the statistically seats are quite low। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो जी, पटाखे वटाखे जलाओ, ढोल वोल बजाओ। नहीं भी हुआ तो यू नीड, अगर आपने लॉ करने के लिए सीरियस हैं, देन 3 year लॉ एंट्रेंसेस फिर आपको साथ में कपल आउट करनी ही पड़ेंगी, एंड उनका पैटर्न रिमार्केबली डिफरेंट है इस वाले एग्जामिनेशन से। तो उनकी तैयारी वैसे और NLSAT की तैयारी अपने दम पर वैसे, मतलब दोनों फिर साथ में आपको रखनी पड़ेगी। Alright, hopefully this session has been of help to you. I wish you all the very best in your preparation, and yeah, you can explore the channel more if you wish. Playlist के अंदर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा इस चैनल पे। Alright, take care, bye.